Good morning, students. Now the next topic of chapter 5 organizing is difference between functional and divisional structure. Students, we have already done features, merits and limitations of both functional and divisional structure. Now you have to write difference between functional and divisional structure. Whenever you are going to write the difference, then you should write the basis also. So we will now differentiate these two. First base is formation. How functional structure is formed? Functional structure is formed on the basis of function, while divisional structure is formed on the basis of product lines. It means functional structure is formed on the basis of functions like purchase, sales, marketing, etc. While divisional structure is formed on the basis of different products like soap, detergent, textile, footwear, etc. Now number 2 is specialization. In case of functional structure, there will be functional specialization or occupational specialization. As all of you know that mainly emphasis is on a specific task. So when a manager or a worker perform the same task again and again, then they will become a specialized in that particular field. While in case of divisional structure, there will be product specialization. It means divisional head gains experience in all the different types of functions related to a product. That is why there will be product specialization. Third one is responsibility. As all of you know that there is very difficult to fix responsibility in case of functional structure because all departments are interdependent or interlinked. While in case of divisional structure, it is very easy to fix responsibility as each division function as an independent यूनिट. स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं. लेकिन अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है क्योंकि हर एक डिवीज़न एक सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करती है, अपने डिसीजंस खुद लेती है और वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती है अपने प्रॉफिट या लॉस के लिए. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड. नेक्स्ट, मैनेजरियल डेवलपमेंट. येस, इन केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर मैनेजरियल डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज मैनेजर्स को कभी भी हम प्रमोट करके हाई लेवल पर नहीं शिफ्ट कर सकते या फिर क्योंकि उनके स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि परचेज मैनेजर की सिर्फ परचेज की फील्ड में होती है, आपकी प्रोडक्शन मैनेजर की स्पेशलाइजेशन सिर्फ प्रोडक्ट के केस में होगी, प्रोडक्शन के केस में होगी. सो उनको कभी भी हम जो है हाई लेवल जॉब पोजीशन के लिए ट्रांसफ़र या फिर शिफ्ट या प्रमोट नहीं कर सकते. लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में क्योंकि एक डिविजनल हेड की स्पेशलाइजेशन एक प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस में होती है तो दे कैन बी promoted to the higher level job position. So managerial development is easy here. Next, cost. Functions are not duplicated, so economical और cheaper. क्योंकि functional structure में कोई भी function हमारे जो है डुप्लीकेशन वहाँ पर नहीं होती, केवल एक डिपार्टमेंट एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है. जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था, परचेज डिपार्टमेंट केवल परचेज का ही काम करता है, सेल डिपार्टमेंट केवल सेल का ही काम करता है. हर एक चीज़ के लिए परचेज के लिए केवल एक डिपार्टमेंट है, सेल के लिए केवल एक डिपार्टमेंट है. तो यहाँ पर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है, कॉस्ट इनकर्ड इन केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ कंपैरेटिवली लेस देन द कॉस्ट इनकर्ड इन divisional structure because in case of divisional structure there is duplication of resources in every department, so it is considered as costly. हमने बेटा पढ़ा था जैसे कि आपका एक सोप का डिवीज़न है तो सोप के डिवीज़न के लिए हमने हर एक जो है डिवीज़न में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए थे, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग. इसी तरह से किसी दूसरे डिवीज़न के लिए भी हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए थे क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेसी है डिफरेंट रिसोर्सेज की, डिपार्टमेंट्स की, तो ये कॉस्टली है एज कंपेयर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन. यस स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर
इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। अगर एक कंपनी, मल्टी मीन्स मैनी, अगर एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है और वो अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी सोप भी बनाती थी, डिटर्जेंट भी बनाती है, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स भी बनाती है, तो उन सब के लिए और डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाती है। सबके लिए केवल हमने एक ही डिपार्टमेंट बनाया, परचेज डिपार्टमेंट, कि जितनी भी परचेजेज हैं सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए परचेज डिपार्टमेंट ही परचेज करके लेकर आएगा। तो कई बार ये हो सकता है कि परचेज डिपार्टमेंट हर एक जो भी प्रोडक्ट्स के लिए जो आपकी क्वेरीज गई हैं, आपकी रिक्वायरमेंट गई है, उनको पूरा ना कर पाए या फिर कोई चीज़ रह जाए। कई बार कन्फ्यूज़न आ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, सो कोऑर्डिनेशन विल बिकम डिफ़िकल्ट इन